Good morning, learner. Again, welcome in my same class, your EVS subject. Okay, you know that this time your EVS works. So, and our chapter number third, water or water is going on. हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था. तो so let's firstly I have discussed to previous work. After that we will start some new questions. Okay, so let's hear. Yesterday I have done our fill in the blanks and second questions and answer in the following questions. We have already done, but today firstly I have explained again this question answer. Don't write again in your notebook. Okay. So look, your first question, fill in the blanks. It is impossible to dash without water. बिना पानी के क्या संभव नहीं है? So live. जीना संभव नहीं है. Look next. Plants and animals also need water. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को पानी की ज़रूरत होती है. कैक्टस प्लांट्स नीड लेस वाटर. Does plant need less water? So cactus plants needs less water. Look 4. Drinking water should be stored in covered container. हमें हमेशा पीने वाले पानी को ढके हुए बर्तन में स्टोर करना चाहिए. Look question number 5. Sea water is salty. जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है? खारा, सॉल्टी होता है. Look question number 2 again. List 4 activities that you can do without water. Your answer is playing, dancing, sleeping, walking. Okay. Look next question number B. List 4 activities that you cannot do without water. ऐसी 4 activities जो आप बिना पानी के नहीं कर सकते. Your answer is swimming, washing, bathing and gardening. Question number C. Name any 5 sources of water. Sources of water, it means where water is available. Okay. First one is rain, second river, third sea and fourth pond and last one is lake. ये जो 5, so these are 5 sources of water and here all are natural sources. Okay, we have already defined it. What is the natural sources of वाटर एंड व्हाट इज़ द ह्यूमन सोर्सेज ऑफ वाटर. इट मीन्स कि जो हमें नेचर से मिलता है, लाइक रेन, बारिश हमें नेचर से मिलता है. रिवर, नदियाँ जो होती हैं वो ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता, ऑलरेडी मेड बाय नेचर. सो इट इज़ द नेचुरल सोर्सेज एंड लाइक हैंड पम्प, टैंक, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन, सो मेड बाय ह्यूमन. ओके. Look question number 3. Underline the odd one out. Okay, so look here, your options are washing, sleeping, cooking and gardening. So sleeping is your out word. It means कि जो sleeping है वो different है from other words because washing, cooking and gardening used to water, but in sleeping we don't have used to water. Look next, fish, frog, whale and dog. So dog is a different word because fish, frog and whale is live in water. Okay. Next, river, mountain, lake and pond. So here river, lake and pond contain water but mountain is not contain water. And 4, car, boat, cycle and bus. So here car, cycle and bus are land transport but boat is a boat is a water transport. So I hope you understood this third question. Look question next. Answer the following questions. Write 4 uses of water. So water is used for drinking, water is used for bathing, water is used for drinking. Again here I drinking. Okay, so right here gardening. Okay, GARDING, gardening. And water is used for cooking. Okay, look next. Name any 3 natural sources of water. So natural sources of water is rain, river and sea. Natural sources, it means you know that na, जो हम those are not made by human, it is already present by nature.
जो प्रकृति से बना है वो नेचुरल सोर्सेस होते हैं, लाइक रेन, बारिश होती है तो ह्यूमन बींग्स के थ्रू नहीं होती है। रिवर, नदियाँ बहती आती हैं, पहाड़ से बहती हुई नीचे आती हैं, तो इट इज़ द सोर्सेस ऑफ, it is a natural sources, and sea is also a natural sources. Okay, and question number third we have already done. Okay, question number third, from where we get water from at home? So your answer is we get water from tank, hand pump and tubewell at home. हम अपने घर पर पानी कहाँ से लाते हैं? So we get water from tank, hand pump and tubewell at home. Okay, and it is also made by human. जो ये सोर्सेस ऑफ वाटर हैं, जैसे टैंक हो गया, हैंड पंप है और ट्यूबवेल है, तो दीज आर ह्यूमन सोर्सेस या ह्यूमन मेड सोर्सेस ऑफ वाटर. ओके, लुक क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 5 रिवर्स इन इंडिया. सो योर आंसर इज गंगा, यमुना, जमुना, कृष्णा, कावेरी एंड ताप्ती. दिस इज अ 5 रिवर्स in India. Okay, question number 5, which is the longest river in India? So the Ganga is the longest river in India. So I hope you all are done your work from question number 5. question number 5 तक आप सभी लोगों ने अपना वर्क कर लिया होगा. So let's start today's work. And today's work, before doing anything, firstly you write down date. And today date is 4th of May 2021. Okay, 21. So firstly mention the date, and those students not completed your work, firstly you complete your work. Okay, let's start our question number 6, and please continue the question down. जहाँ तक आपने किया उसकी नेक्स्ट लाइन से यू स्टार्ट फ्रॉम दिस न्यू लाइन, not new page, start with new line. Okay, your question number 6 is why do we need to store water? हमें पानी स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप सबको पता है ना, we always store water. You know that every student have a water tank at your home. आप सभी लोगों के घर में एक वाटर टैंक होगा जिसमें पानी आप ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं. तो why do we need to store water? तो हमें पानी स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? We need to store water so that it can be used when water supply is unavailable. कब यूज़ होता है? जैसे we need to water, हमें वाटर को स्टोर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम इसका यूज़ कभी भी कर सकते हैं. जब वाटर सप्लाई नहीं हो रहा हो तो भी स्टोर वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं. आप टैंक में पानी स्टोर करते हैं तो क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो उस केस में क्या होता है, जो जिनके घर में मोटर के थ्रू मोटर का यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, टैंक में पानी इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर करते हैं, और बाद में लाइट नहीं होने पर उस वाटर टैंक का यूज़, उस वाटर का यूज़ वो बाद में कर लेते हैं. बट कभी कभी आप देखते हैं जो टैंकी से वाटर सप्लाई होता है, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू जो पानी की टैंकी में वाटर आता है, वो भी कुछ टाइम के लिए आता है और कभी कभी बंद हो जाता है. तो अगर आप वाटर स्टोर करके रखते हैं जैसे फ्रिज में पीने के लिए या कहीं और, तो आप देखते हैं कि उन पानी का यूज़, ये स्टोर पानी का यूज़ फिर हम जब हमें पानी अवेलेबल नहीं होगा उस केस में हम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, लुक क्वेश्चन नंबर 7, कैन वी लिव विदाउट वाटर? तो क्वेश्चन नंबर 7 इज कैन यू लिव विदाउट वाटर? सो नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. क्या हम बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं. अगर आप एक दिन पानी ना पिए तो क्या होता है, आप देखते हैं ना आपकी कैसे फेस सूख जाता है आपका. अभी गर्मियों के दिनों में तो पानी बहुत ज़रूरी हो गया, हम एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकते. सो कैन वी लिव विदाउट वाटर? नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू प्लांट नीड वाटर? प्लांट्स को पानी की ज़रूरत क्यों होती है? तो प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोइंग एंड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. आपको सबको पता है ना, हमने इन प्रीवियस chapter we have already discussed about to plant how can make a food. So plant need nutrition, sunlight, means soil से nutritions लेते हैं वो, तो sunlight, air and CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नीड टू मेक अ फूड. तो इसलिए उसे प्रिपेयरिंग अ फूड,
खाना बनाने के लिए भी प्लांट्स को नीड होती है और साथ में ग्रो करने के लिए। अगर हम पौधे को आप देखते हैं ना आजकल, अगर आजकल आप पेड़ पौधों को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं और आप उन्हें पानी नहीं देते हैं, तो आप दोपहर में अगर उनकी कंडीशन देखते हैं तो वो बहुत मुरझाए हुए लगते हैं। तो लेकिन आपको दोपहर में गार्डनिंग में पानी नहीं देना है। कब गार्डनिंग में पानी, कब प्लांट्स को पानी कब देते हैं? सुबह और शाम को। क्यों? क्योंकि जो रिजोल्यूशन होता है, जो सोखते हैं वो लोग, वो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो सुबह और शाम को जो हमारा लैंड है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है और पानी कम लगता है। तो वी कैन स्टोर वाटर अगर आप इवनिंग और मॉर्निंग में पानी देते हैं पौधों को तो, ठीक है। तो लुक अगेन क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी प्लांट नीड वाटर? सो प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोइंग एंड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। बड़े होने के लिए और खाना बनाने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। लुक क्वेश्चन नंबर 9, हाउ शुड वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर? हम पीने का पानी कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। लुक क्वेश्चन नंबर 9, ओके। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अ क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। हमें पीने का पानी कैसे स्टोर करना चाहिए? तो हमें पीने का पानी हमेशा साफ और ढके हुए बर्तन में ही स्टोर करना चाहिए, क्योंकि पीने के लिए पानी जो होता है वो हमेशा साफ और ढके बर्तन में ही क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। लुक क्वेश्चन नंबर 10, नेम अ रिवर विच फ्लो थ्रू योर स्टेट। आपको एक ऐसे रिवर का नाम बताना है जो आपके स्टेट से होकर गुजरता है। तो कावेरी, KAVERI, और भी बहुत स्टेट हैं, बहुत ही रिवर्स हैं जो हमारे स्टेट से होके निकलते हैं, बट यू कैन राइट एनी वन, ओके। लुक क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर? So the answer is main source of water, it means rain. Rain is the main source of water. Look question number 12. What is underground water? Underground water क्या होता है? The rain water that seeps into the soil is known as underground water. I hope you understood. जब बारिश का पानी धीरे धीरे ज़मीन की मिट्टी के अंदर जाता है, आप देखते हैं ना पानी बहुत ऐसे, जब बारिश होती है तो पानी सूख जाता है, पानी इकट्ठा नहीं होता है। पहले जो होता है, पहले पानी सूखता है तो वो पानी कहाँ जाता है? वो धीरे धीरे धरती के अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो द रेन वाटर दैट सीप इनटू द सॉइल इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। तो ऐसे वाटर जो पानी नीचे जाता है, जब पानी, बारिश का पानी नीचे चला जाता है तो वो वाटर क्या कहलाता है? अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। और इस अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ कैसे हम करते हैं? बाय यूजिंग ट्यूबवेल के थ्रू, हैंडपम्प के थ्रू दोबारा से हम इस जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका यूज़ कर लेते हैं। लुक क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन वी यूज़ अंडरग्राउंड वाटर? आप अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ कैसे करते हैं? मैंने अभी बताया। तो वी कैन यूज़ अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स और बाय यूजिंग हैंडपम्प। तो क्या होता है, जब ये नीचे पानी, आप सबको पता है ना, यू नो दैट कि हमारे जो अर्थ है उसके नीचे पानी है, और ये पानी जब हम हैंडपम्प, जो कि ह्यूमन रिसोर्स है, हैंडपम्प ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, तो ये हैंडपम्प से पानी कहाँ से आता है? ज़मीन के अंदर से आता है। तो जब इन सारे पानी का यूज़ हम कैसे कर लेते हैं? ट्यूबवेल के थ्रू कर लेते हैं, हैंडपम्प के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। लुक क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट सम यूजेस ऑफ वाटर। आपको यूजेस ऑफ वाटर करने हैं, तो ये 14 क्वेश्चन नंबर आप नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड अटेंसिल, कुकिंग, गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। खेती के लिए भी हम यूज़ करते हैं, आपको पता है ना, फसलों के लिए भी पानी डालना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, लुक क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर? सो आंसर इज सॉलिड। वाटर के कितने फॉर्म्स हैं? 3। सॉलिड फॉर्म में आइस एंड स्नो, बर्फ़ जो होता है, जो आइस, पीस ऑफ आइस होता है, वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड, क्यों? क्योंकि आइस का कुछ ना कुछ वेट होता है और कुछ ना कुछ क्या होता है, उसका फिगर होता है। अंडरस्टूड? लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर, एंड गैस फॉर्म में क्या होता है? वाटर वेपर।
अंडरस्टूड। जब भाप बनता है पानी तो उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, और ये कौन से फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में। तो जो वाटर होता है वो 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में हमें आइस, पीस ऑफ आइस के मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में वाटर एंड गैस फॉर्म में वाटर वेपर मिलते हैं। तो दीज 10 क्वेश्चन यू डू टूडेज, ओके। सो लुक हियर वंस अगेन from question number 6. Okay, today you start our work from question number 6. Why do we need to store water? Your first question today is, why do we need to store water? Your answer is, we need to store water so that it can be used when water supply is unavailable. Question number 7. Can we live without water? So no, we can't live without water. Question number 8. Why do plants need water? So plants need water for growing and for preparing food. Question number 9. How should we store drinking water? So we should store drinking water in a clean and covered container. Question number 10. Name a river which flows through your state. Your answer is Kaveri. What is the main source of water? Your answer is rain. Question number 12. What is underground water? The rain water that seeps into the soil is known as underground water. Question number 13. How can we use underground water? So we can use underground water by digging wells and tube wells or by using hand pump. Question number 14. Don't write again because we have already write 2 times this answer, but you look here. Water is used for drinking, washing clothes and utensils, cooking, gardening and agriculture. Question number 15. What are the 3 forms of water? So your answer is solid form, ice and snow, liquid form, water, and gas form, water vapor. I hope you understood. You do this all 10 question. It is not very lengthy question. It is very short type question. Look here, 7 to 12, 7 to 13 question is a short type question. Question number 14 is, don't write in your notebook again. And question number 15. Okay, so please complete your work. After completing, everyone click the pic and send to me, because I will give you attendance based on your pictures. अंडरस्टूड ना? मैं जो आप पिक्चर्स मुझे सेंड करेंगे उसी के बेस पर मैं आपको क्या करूँगी, आप सभी लोगों को मैं अटेंडेंस दूंगी. एंड लिसन वन थिंग्स, प्लीज़ कमेंट. दोस्त स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट एट लीस्ट योर नेम and say to present ma'am, because many student not watching this videos. So I just want, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ how many student that want that watch this video. Okay, and listen one thing again, some student make video clip to learn types of plant. Everyone, those student that not give me your video clip, please send to me of फॉर अप्रैल मंथ. देखिए अभी जो आप लोगों ने वीडियो क्लिप मुझे दिया था वो अप्रैल मंथ के लिए था, और आपका जो प्रीवियस वीक था वो आपके ईवीएस सब्जेक्ट के लिए था. नाउ इन मई मंथ अभी जो हमारा लास्ट वीक होगा वो दोबारा से हमारा ईवीएस के लिए होगा. सो प्लीज़ प्रिपेयर. आपको पूरे मंथ में ओनली 1 वीडियो मेक करना है. मेक ओनली 1 वीडियो. सो प्लीज़ फर्स्टली एवरीवन दोज नॉट सेंडिंग मी, लिसन केयरफुली. जिन्होंने मुझे वीडियो सेंड नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो बना के मुझे सेंड कर देंगे. अंडरस्टूड. एंड क्या बनाना है उसमें? सो लर्न टाइप्स ऑफ प्लांट. सारे बच्चों को मैंने एक ही टॉपिक दिया था, एंड दैट नेम इज टाइप्स ऑफ प्लांट. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, इस मीन्स कि देर आर 3 प्लांट्स. आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, क्लाइंबर, क्रीपर एंड हर्ब्स. मैंने आप सभी लोगों को बता दिया 3 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. तो उन तीनों टाइप्स के प्लांट की डेफिनेशन आप लर्न करके मेक अ वीडियो क्लिप, वेरी शॉर्ट वीडियो क्लिप, नॉट नीड टू मोर देन 2 minutes. ओके, यू मेक ओनली 2 minutes वीडियो क्लिप, देन यू सेंड मी. एंड यू ऑल्सो मैंसन योर नेम एंड क्लास विथ सेक्शन. आप सभी लोग अपने नेम के साथ क्लास और सेक्शन लिख के ज़रूर मुझे भेजेंगे. अंडरस्टूड. आई रिकॉग्नाइज बाय योर नेम एंड योर क्लास and sections. So complete your work, focus on your writing, stay home, safe home. Okay, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, stay healthy.
So thank you everyone. Watch it carefully.